Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my second live to this group. I'm Erin bin Safia from Parenting Uncomplicated. You've heard me before speak on the topic of boundaries. I will wait for somebody to let me know if my sound is clear, picture clear, because Facebook shows me notifications a bit late. Today, our topic is raising confident children. And as we all know, that no topics comes without research. And I did my research, and you know what? I came up with a plan. I came up with a book, Raising Good Humans, right? And it says, Raising Good Humans, a mindful guide to breaking the cycle of reactive parenting and raising confident kids, which means it encompasses all of what we want to learn, say? And this is my proposal to you. If the audience would agree, inshallah, we would do a weekly breakup of this entire book and learn from its gems, and inshallah start practicing those gems. So do let me know by the end of the live. I will repeat this again because right now I don't see anybody online. And I just want to wait a few more seconds. Assalamu alaikum. I see the first person live. Assalamu alaikum. We are doing today the book Raising Good Humans and a mindful guide to breaking the cycle. I am proposing that we do a weekly live session breaking the lessons from this book, inshallah, so that we can all be mindful and we can all have confident children. Do send me your thumbs up, your salams, something, so that I start my conversation. And before I do that, I wanted to ask, how are you all? Karachi ke log kaise hain? Kya halat hain aap logon ke? And I hope कि मतलब Allah subhanahu wa ta'ala आप सबको relief और आसानी अता फरमाए इंशाल्लाह. मुश्किल वक्त है, मुश्किल हालात हैं, जो जहाँ भी तकलीफ और परेशानी से गुजर रहा है, या रब उन सब पर अपना करम फरमा. So let's start with what is mindful parenting. And why do I start with what is mindful parenting? हम बहुत आसानी से कहते हैं कि raising your children, आप ये 4 तरीके कर लो, ज़बरदस्त किस्म के बच्चे आप पाल लोगे. आप ये 6 तरीके अपना लो, ज़िंदगी का रूल कर लो. आप हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पर हम करते कितना हैं? और हमारा जो ये टॉपिक है आज, रेजिंग कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन या रेजिंग रिजिलिएंट चिल्ड्रन कह लो, वो शुरू कहाँ से होता है? वो शुरू होता है बीइंग अ कॉन्फिडेंट पेरेंट विद इन आवरसेल्व्स. आप कुछ दे नहीं सकते जब तक कि आपके पास वो क्वालिटी खुद ना हो. जो इंतहाई मशहूर या इंतहाई कामयाब लोग होते हैं, अगर आप कभी उनसे पूछें तो उनके माँ बाप वो नंबर 1 फैक्टर बताते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत इस तरीके से की. यूजुअली पॉजिटिव ही लाइट होती है, और उसके बाद उनको कोई मेंटर, कोई लाइफ टीचर, कोई इस तरह का मिलता है, और फिर बहुत सारे लोगों से वो सीखते हैं. लेकिन पहले जिम्मेदारी माँ बाप की है. मैं इस बुक को आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं ऑडियंस से सुनना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर ready to do this book course with me, I can come weekly online and we can do step-by-step lessons from this book so that we can become the fantastic parents that we're supposed to be, so that we can raise confident children. What is mindful parenting? A mindful parent is a new generation of parent, present, evolving, calm and authentic. अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि mindful parent is a new generation of parent. 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नरमी से, अपने बेहतरीन अखलाकियात से हमें बता दिया कि हमें कैसा पेरेंट होने की ज़रूरत है. अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की मशहूर तरीन हदीस है कि हालांकि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एज अ ग़ुलाम दिए गए थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने 10 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर्विस की और उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा तुमने ये क्यों किया और तुमने ये क्यों नहीं किया. सुभान अल्लाह. तो अब अगैन ये एग्जाम्पल सुनने में तो अच्छी है, पर करने में हम कितने करते हैं? मैं खुद नहीं करती, बाज़ औक़ात नहीं कर पाती या भूल जाती हूँ. और यहाँ पर आती है हमारी माइंडफुल पेरेंटिंग, जहाँ पे हम कॉन्शियसली जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो कहते हैं, उसको 2 सेकंड के लिए अगर परख लें कि क्या ये मैं जो बात करने जा रही हूँ, इसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है. और बाज़ औक़ात अगर हम ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे हमारा इफ़ेक्ट ही हम चाहते हैं कि इफ़ेक्ट ही नेगेटिव हो, बात लगे किसी को,
तो फिर वो माइंडफुलनेस तो ना हुई. और स्पेशली एज अ पेरेंट अगर हम अपने बच्चे को तान लान करके बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसे एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड हरगिज रेज नहीं करेंगे. कमिंग बैक टू द सेकेंड, रिजेक्ट द कल्चर ऑफ नॉट गुड इनफ. परफेक्शन का कल्चर है ना हमारे पास, कि मतलब हर चीज़ की हमारे पास परफेक्शन होनी चाहिए. परफेक्ट ग्रेड्स, परफेक्ट घर, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट ड्रेस, परफेक्ट क्या होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के अलावा तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता. और हदीस है, हदीस कुदसी है कि इंसान का पेट वो गड़ा है कि जिसको जितना मर्जी भरते जाओ वो कभी पूरा फुल होता ही नहीं है. तो परफेक्शन इज समथिंग जो हमारी सोसाइटी ने हमें या हमारे मीडिया ने हमें कहा है कि ये परफेक्ट है. आपकी जल्द खूबसूरत और परफेक्ट, आपके बाल खूबसूरत और परफेक्ट हो ही नहीं सकते. एक हमारी हकीकत ये है कि हम डिस्टॉर्ट होने वाली चीज़ हैं, ख़त्म होने वाली चीज़ है. तो जो चीज़ शुरू होती है, पनपती बढ़ती है और फिर ख़त्म होती है, वो परफेक्ट कैसे हो सकती है? वो किसी भी स्टेज पे परफेक्ट नहीं होती. तो इस चीज़ को जाने दें कि परफेक्ट ग्रेड्स ही मुझे एक बेहतरीन पेरेंट बताएंगे, या इस कॉलेज में मेरे बच्चे का दाखिला हो जाएगा तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं बेहतरीन पेरेंट हूँ. दिस कैन नॉट हैपन, राइट? उसके अलावा नंबर 3, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन एंड सी द चैलेंजेस एज टीचर्स नॉट फ्लॉज. हमसे गलतियाँ होंगी और होती रहेंगी और होनी चाहिए. वो शख्स नॉर्मल नहीं हो सकता जिससे गलतियाँ ना हो. तो सेल्फ कंपैशन, अपने आप को समझाएं कि इंसान हो, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, इट्स ओके. अपने आप को माफ़ करें और नए सिरे से शुरू करें. नंबर 4, वैल्यू विजडम ओवर रिएक्टिविटी, एम्पैथी ओवर ओबीडियंस. विजडम ओवर रिएक्टिविटी, ये क्यों कर दिया है कि बजाय 2 मिनट के लिए सोचें या 2 घंटे के लिए सोचें या 2 दिन के लिए सोचें, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग ऑफ अ सिचुएशन इज, कि मेरे इस तरह से रिएक्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा फ़र्क पड़ेगा कि बुरा फ़र्क पड़ेगा? एम्पैथी ओवर ओबीडियंस, मेरी बात सुनो क्योंकि मैंने कहा है, क्योंकि ये मेरा घर है, क्योंकि ये मेरी मर्जी है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ. ठीक है, ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग हो गई, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग हो गई. ठीक है, बजाय इसके एम्पैथी, मुझे समझ है कि तुम्हारा कोई मसला है, मुझे समझ है कि ये गलती से हो गया है, मुझे समझ है कि तुम ऐसा नहीं करना चाह रही थी या तुम ऐसा नहीं बोलना चाह रहे थे, मुझे समझ है कि कोई और चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है. इस तरह के जुमले जो हैं वो एम्पैथी क्रिएट करते हैं, वो एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन बंधने के लिए, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है. नंबर 6, मेक सॉलिट्यूड मोमेंट योर प्रायोरिटी टू फंक्शन बेटर. हम सबको पता है कि नमाज़ पढ़नी चाहिए. यूजुअली एज मदर्स हमारी नमाजें यूँ होती हैं, लाइक टकरें होती हैं बेसिकली, कि मतलब हमने अपने फ़राइज़ पूरे करना है. छोटे बच्चों के साथ मैं 100% मानती हूँ कि सॉलिट्यूड में नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर हम कोई वक्त निकाल लें, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग का या तहज्जुद का या इशराक का, या कोई ऐसा टाइम जहाँ पे बच्चा सो रहा हो, छोटे बच्चों की बात हो रही है. बड़े बच्चों में तो फिर माओं के पास टाइम होता है कि वो नमाज सॉलिट्यूड से पढ़ सकती हैं, सोचते समझते हुए कि मैं अपने रब के आगे हाजिर हूँ. वो ज़रूरी है. अच्छा, वेस्ट में उसको कहते हैं मेडिटेशन करो, अपने लिए अपनी वॉक्स करो, अपने आप करो, वॉक्स ज़रूर करो अगर आप जा सकते हो सॉलिट्यूड प्लेस पे. अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे जंगल हैं, बागात हैं, दरख्त हैं, आसमान है, खुला पानी है, तो ज़रूर जाओ. उधर जाके भी नवाफिल पढ़ सकते हो, उधर जाके भी कुरान पढ़ सकते हो. कुरान पढ़ो, रिफ्लेक्ट करो. ज़रूरी है सॉलिट्यूड, थोड़ी देर की खामोशी ज़रूरी है. और जब हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हर वक्त शोर है, तो फिर अपने अंदर खामोशी पाने की कोशिश करें. ये प्रैक्टिस से आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. नंबर 7, you are motivated knowing that with every step there are changing things for a generation to follow. You are changing things for a generation to follow. Knowingly ये काम करें कि आज मैं अगर कोई स्टैंडर्ड सेटअप करूँगी तो कल मेरी बेटी को पता होगा कि कोई स्टैंडर्ड होता है, मेरे बेटे को पता होगा कि कोई अच्छा स्टैंडर्ड होता है. आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्ल के लिए अच्छी आदत, अच्छे हैबिट्स, अच्छी लिमिटेशंस, अच्छी बाउंड्रीज सेटअप कर रहे हो, इंटेंशनली सेटअप कर रहे हो. ठीक है, पार्ट 1 पर आते हैं. अगेन today I'm not going to do the complete book. I want the audience to give me a feedback so that we can do 2-3 lives, so that we can finish this whole book and actually gain some
wisdom out of it and practice that wisdom. ज़रूरी है कि हम practice करें. मेरा सबसे बड़ा अलमिया ये होता है मेरे audience या मेरे enrolled क्या कहते हैं clients के साथ कि हम सुनना सब कुछ चाहते हैं पर करते हुए हमें मुश्किल होती है. किए बगैर कोई काम कोई रिजल्ट्स तो मिलते नहीं है, हम सब जानते हैं. हम चाहें कि हम मुर्ग मुसल्लम या कोई बहुत अच्छी सी डिश खाना चाहते हैं लेकिन हम पका नहीं रहे और कोई हमें पका के खिलाएगा भी नहीं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल. खैर, सो लेट्स गो टू पार्ट 1. ब्रेक द साइकिल ऑफ रिएक्टिविटी. बीइंग अ रिएक्टिव पेरेंट, जल्दबाजी में फटाफट जवाब दे देना, जिसको कि हमारे माशरे ने बहुत आम कर दिया हुआ है. क्या हाजिर जवाब शख्स है वो, उससे तो बात करना ही उससे, मैं इस कमेंट पे हंस रही हूँ, उससे तो बात करना ही बहुत मुश्किल है, या उससे तो कोई जीत ही नहीं सकता. क्या हाजिर जवाब है वो. ठीक है, अब हम ये बचपन से एक छोटे से बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं कि बदतमीज़ हो जाओ, क्योंकि हाजिर जवाबी में हम स्मार्टनेस नहीं सिखाते, हम बेसिकली उसकी बदतमीज़ी को वो कर रहे होते हैं. हाँ, हाजिर जवाब लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत तमीज़दार भी होते हैं, लेकिन उस हाजिर जवाबी को हज़म करने के लिए हमारे पास भी थोड़ा सा सब्र होना चाहिए. खैर, कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट, मैं अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि बुक लर्निंग, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ रिएक्टिविटी. डैनियल सीगल एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी बहुत सारी किताबें हैं और उन्होंने ब्रेन को बड़े अच्छे तरीके से बताया. उन्होंने कहा कि ये जो 4 फिंगर्स है ना, अगर आप अपनी मुट्ठी यूँ कर लें, इन्होंने कहा कि ये जो आपकी 4 फिंगर्स है ना, बेसिकली ये आपका अपर पोर्शन ऑफ द ब्रेन है, द फ्रंटल कॉर्टेक्स, विच इज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट. एंड ये जो आपका थंब है ना, ये आपका लोअर पोर्शन है ऑफ द ब्रेन, विच इज़ ऑल योर इमोशंस. होता क्या है कि जब हमें कोई चीज़ थ्रेटन करती है या हम डर जाते हैं या हम गुस्सा करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन लिड है ना, इस तरह से ब्रेन बंद है, हमारा ब्रेन लिड यूँ खुल जाता है और ये जो 4 चीज़ें ना, ये गायब हो जाती हैं. मतलब कि उस वक्त हम इस पार्ट ऑफ द ब्रेन को यूज़ नहीं कर रहे, हम इस पार्ट ऑफ द ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, which is basically our emotional sensitivity, right? And we are not able to, and especially the children are not able to, जब ये है ही नहीं, जब ये पोर्शन काम ही नहीं कर रहा उस वक्त, क्योंकि आप इमोशनल फाइट और फ्लाइट मोड में हैं, तो आपके इमोशंस आपको टेक ओवर कर लेते हैं. So what happens is, the upper part is for rational decision making, conscious control, self-awareness. Losing control isn't a choice you make. Now listen to this. Losing control isn't a choice you make. They say it's a biological reaction. जब एकदम से किसी चीज़ की वजह से आपका दिमाग आपको कहता है कि ये क्या हो गया, राइट. चाहे वो आपसे गलती हो या चाहे वो आपके बच्चे से हो या आपका बच्चा फील कर रहा हो, राइट. वो फाइट एंड फ्लाइट मोड जो है, उसकी वजह से आपके ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसकी मेन रीजनिंग तो काम करना शुरू हो गया, आपके इमोशंस ने टेक ओवर कर लिया. जब आपके इमोशंस ने टेक ओवर कर लिया तो आपका रिएक्शन होगा गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, और आपके बच्चे का भी एग्जैक्टली यही रिएक्शन होगा, गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, मेल्ट डाउन. ऐसे में अगर आप बच्चे को ये कह रहे हैं चुप कर जाओ, काम हो जाओ, लिसन टू मी, सिट डाउन, ये मत करो, वो मत करो, उस वक्त उसका दिमाग वहाँ पे हाजिर नहीं है रिस्पॉन्ड करने को किसी भी ऐसी बात को जो आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स से, जो कि रीजन से और लॉजिक से जुड़ा हो, बिकॉज द इमोशनल थिंग हैज टेकन ओवर. So then they say that do mindful mediation. अब बड़ों की बात करें, this life today is only about us adults. If the audience would want to continue with this lesson, inshallah, to complete this book that I'm doing with you all, Raising Good Humans, then inshallah we will do the second session where we will talk about the kids more. तो वो कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करें, ठीक है, इन्होंने चूँकि ये माइंडफुलनेस पर है और वेस्टर्न स्कॉलर की बुक है, तो वो मेडिटेशन के बारे में बात कर रही हैं, और वो फिर ये बार बार कहते हैं कि अगर कोई शख्स 8 वीक का मेडिटेशन कोर्स करता है तो उसकी ब्रेन चेंज हो जाती है, फिजिकली ब्रेन चेंज हो जाता है, क्योंकि आप हर चीज़ को सोच के समझ के कर रहे हो, क्योंकि आप हर चीज़ को मेडिटेट कर रहे हो, आप हर चीज़ को अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मूवमेंट के साथ कर रहे हो, राइट. तो माइंडफुल प्रैक्टिस, द ब्रेन्स फाइट और फ्लाइट सेंटर्स appears to shrink and the peripheral cortex becomes thick. So it is basically changing. And I was thinking, जब मैं ये कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि सुभान अल्लाह,
अल्लाह ने हम मुसलमानों को ऑलरेडी वो सारे टूल्स दिए हुए हैं जो ये बाद में वेस्ट वाले डिस्क्राइब करते हैं कि ये कर लो और ये कर लो और ये कर लो, और अगर हम इनकी चीज़ों को भी थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन माइंडफुलनेस, सोच के पढ़ना, समझ के ज़िक्र करना. क्यों है ये हदीस के जब आप ज़िक्र करो तो आप अपने जो आप ज़िक्र कर रहे हो उसके बारे में उस पर गौर करो. सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह. हमें माइंडफुलनेस किधर है? सुभान अल्लाह में तस्बीह तो ख़त्म हो गई, पर माइंडफुली हमने वो तस्बीह कैसे की, हमने अपने रब को सही से याद कैसे किया. और ये बहुत पुरानी आर्ग्यूमेंट है कि मेरे पास टाइम नहीं है. अगर आप हमारे पास हमें हमारे रब का थोड़ा सा हक अदा करने का, उसकी इबादत के थ्रू टाइम नहीं है, तो फिर हमारा मकसद क्या है ज़िंदगी का? सोचने की बात. So your child has the same reactive stress response to you. Their fight or flight mode sees and prevents you and sees you as a threat. So लिहाजा when we do this, तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे. When we start our conversation like that, प्लीज़ इस बात को समझें कि हमारा बच्चे का दिमाग ऑलरेडी फाइट और फ्लाइट मोड में चला गया. उसका ये दिमाग का डब्बा खुल गया, रीज़न लॉजिक ख़त्म हो गया, अब इमोशनल ओवरकम हो गया. ठीक है, इमोशंस ओवरकम हो गया. और इमोशंस में कौन सा इमोशन ओवरकम हुआ है? इमोशंस में ओवरकम हुआ है फाइट और फ्लाइट. मतलब कि या मैं बदतमीजी करके अपनी बात मनवा लूंगा और गुस्सा करके बड़ा बड़ा करके मैं मतलब कि बात को रफा दफा करवा सकूंगा, या फिर मैं चुप कर जाऊंगी, बिल्कुल चुप कर जाऊंगी और कोई जवाब नहीं दूंगी. ठीक, हम एज बड़े भी अपने रिश्तों में ऐसे करते हैं क्योंकि हम अंदर से थ्रेटन हो जाते हैं. हम कहते हैं कि यार मुझे ना मगजमारी नहीं करनी, मैं चुप ही हो जाऊँ तो बेहतर है. विच बेसिकली लीड्स टू अ पेंटेड अप फीलिंग, और फिर बाद में एक विक्टिम बेस्ड साइकिल होता है, विच इज़ अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद आवर चिल्ड्रन एज वेल. जब बच्चे को आप एक काम आवाज़ में बोलोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, टूट गया, कोई दुनिया नहीं ख़त्म हो गई, इट्स कम्प्लीटली ओके, चीज़ें टूटने फूटने के लिए होती हैं, उस बच्चे का रीज़न और लॉजिक वापस आना शुरू हो जाएगा और उस बच्चे को कामनेस फील होगी और उस बच्चे को कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा बड़ा जो है वो मुझसे प्यार करता है, ना कि मेरी इन चीज़ों से प्यार करता है. हालांकि मुझे पता है, आई 100% एग्री दैट इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड लाख रुपए या 2 लाख रुपए इन समथिंग और 3 लाख रुपए इन समथिंग एंड दैट ब्रेक्स बिकॉज ऑफ योर चाइल्ड, देयर इज़ गोइंग टू बी अ हार्ट ब्रेक. Come on, reasonably, there is definitely going to be a heartbreak. But बच्चा या वो चीज़ जो चंद रुपयों से आ सकती है, right? You have to be mindful of your choices, of what you're saying, of what you're doing. चीज़ें रिपेयर हो सकती हैं, चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, चीज़ें बदली जा सकती हैं. हमारे बच्चे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इंतहाई खूबसूरत नेमत है, are priceless. So, coming back to the point. So, the next practice is to come down to their level. अगर छोटे बच्चे से आप बात कर रहे हो, for example, तो आप उसके लेवल पे बैठ के बात करोगे. वो अगर ऐसे ऐसे कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसे करने दो, उसका हाथ पकड़ो, उससे आराम से बात करो, आपकी आंखों में शफकत हो, आपकी आवाज़ में नरमी हो, पता चले उसको कि मुझसे मोहब्बत करते हैं मेरे वालिदैन. यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बच्चों में. जो हम कहते हैं ना कि बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होना चाहिए, यहाँ से. मुंह फट और बदतमीजी और हाजिर जवाबी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपको लैक ऑफ एम्पैथी देती है, लैक ऑफ कंपैशन देती है और आपको एरोगेंट बनाती है. हमें वो बच्चे नहीं चाहिए, हमें वो फ्यूचर जनरेशन नहीं चाहिए जो एरोगेंट हो, जो सिवाय अपनी ज़ात के अलावा किसी और के बारे में सोच ही ना सके. ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं कुछ एक्टिविटीज़ पे, कुछ एक्सरसाइजेस पे. इफ़ यू हैव पेंसिल एंड पेपर, आई वुड हाईली recommend that you copy a few notes so that, you know, when we do our next session, you already have revised something, because without revision, everything is just lost. I hope you all agree. Thank you so much. Aruba says she always goes at the eye level. MashaAllah, that's a really good practice. So they say that do mindful activities every day. हम अपनी सलाह वगैरह करते हैं. अच्छा, एक बड़े ही मज़े की उन्होंने एग्जांपल दी और मुझे ये एग्जांपल पढ़ते हुए हंसी भी आई, पर मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करूँगी. जो कर सकता है ज़रूर करे, जो नहीं कर सकता इट इज़ ओके. उन्होंने कहा कि माइंडफुल एवरीडे प्रैक्टिस की एक एग्जांपल है कि आप माइंडफुली बर्तन धोएं और वॉश द डिशेस, फील द वार्म वाटर ऑन योर हैंड्स. मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा वॉश द डिशेस पीसफुली. कुछ लोगों को वैसे बर्तन धोना पसंद भी होता है,
I'm not one of those people. तो if you are that kind of a person, and if तो इस चीज़ को हम किसी भी अपनी घर की एक्टिविटी पे लागू कर सकते हैं. Ironing the clothes, doing your laundry, dusting, cleaning, कुछ भी, vacuuming, जो भी आप करना पसंद करते हो, घर के कामों में जो सी चीज़ आपको पसंद है, even in your cooking, because you know हमें ये बात पता है कि कुकिंग का आधा टेस्ट तो उस अफेक्शन से आता है जिससे आप खाना पका रहे हो. जायका सिर्फ हाथ का नहीं होता, जायका आपके इमोशंस का भी होता है जो आप उस खाने के अंदर डालते हो, राइट? पसीनों पसीन ख़वातीन किचन में जब खाना पका रही होती हैं तो खैर उनका इमोशन क्या होता है ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और अपनी एक जनरेशन अच्छी रेज करना चाहते हैं तो अच्छा Sima, okay, mashallah. So wash the dishes slowly, feel the warm water on your hands, pay attention to the sounds of the plates and cups. Mindfulness basically ये है कि आप हाजिर हो उस मोमेंट में. Notice the shape of the suds, मतलब वो जो bubbles बन रहे हैं उसकी shape notice करें. Let yourself enjoy the experience of making something dirty clean. When you think about other things, you can acknowledge that your mind has wandered and then refocus. अब माशाल्लाह जो उन्होंने ये बात की ना, ये exactly हमारी सलाह और हमारी तस्बीह पे भी लागू होती है कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और फिर हम माइंडफुली अपने दिमाग को फिर वापस लेकर आते हैं कि नहीं, रब के आगे खड़े हो, अपनी सूरा पढ़ रहे हो, अपनी तस्बीह कर रहे हो, वापस लेकर आते हैं. That part is exactly what mindfulness practice is. ठीक है? उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, see your child with fresh eyes. अब ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप mindful parenting करना शुरू करते हो, to raise a confident child, you will have to see your child with fresh eyes. गौर से देखें अपने बच्चे को. बच्चा यूजली कहेगा क्या कर रही हैं, इतना गौर से क्यों देख रही हैं, मैंने क्या गलत किया है. जब आप बच्चे को गौर से देख रहे हो और बच्चा आगे से ये बोले ना मैंने क्या गलत किया है, मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, तो समझ जाएं कि हमने कहीं पे बच्चे को टार्निश कर दिया है. हमारा बच्चा कहीं पे हमसे खफा हो गया है, हमारा बच्चा कहीं पे हमसे नाराज़ हो गया, हमने अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस में एक दरार डाल दी है क्योंकि हमारे बच्चे को यही कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर माँ उसे गौर से देख रही है तो उसका प्यार भी हो सकता है. हम बच्चा हमारा यही समझ रहा है इसने ज़रूर मेरे अंदर कोई ऐब खामी मेरे काम में निकालनी है तभी मुझे इतने गौर से देख रही है, कोई लेक्चर मेरे सर पे अब उड़ेलने वाली है. गलती हो जाती है, यहाँ पे सेल्फ कंपैशन यूज़ करें. अगर रिकग्नाइज कर लिया है कि हमसे ये ज़्यादती हो गई है तो ये रिवर्सिबल है, हम इस ज़्यादती को चेंज कर सकते हैं. तो वो कहते हैं कि see your child with fresh eyes. Imagine that you're meeting your child for the first time. See them with curiosity. उनके चेहरे के जाविये को नोटिस करें, उनकी स्माइल को, उनकी आंख के कलर को, उनके बालों की लेंथ को, मतलब गौर से देखें और फिर उसके बाद with an attitude of curiosity rather than judgment. अच्छा, सुभान अल्लाह, हमारे क्या अजीब मखलूक है, इंतहा की मोहब्बत भी है हमें अपने बच्चों से और हमारे अल्फाज चीर फाड़ के रख देते हैं हमारे बच्चों के कॉन्फिडेंस को. जब हम उस बच्चे को गौर से देख रहे हैं, कह रहे हैं यार मुझे लगता है तुम्हारा वज़न बढ़ गया, खिला तो आप ही रहे हो, घर की प्रैक्टिस तो आपने ही रखी हुई है, वो खुद तो कमा के ला नहीं रहा कहीं से, फिर ये क्यों कहा आपने अपने बच्चे को मुझे लगता है तुम्हारा वज़न बढ़ गया. आपको अगर लग रहा है कि बच्चे का वज़न बढ़ गया तो अपनी एक्टिविटीज़ चेंज करें, अपने खाने पीने के मेन्यू को चेंज करें, अपनी जो चीज़ें आप ला के उसको दे रहे हैं एक्स्ट्रा जंक उसको चेंज करें, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं. बच्चे को ये कहने से कि तुम्हारा वज़न बढ़ गया है हमने क्या हासिल कर लिया. सोचने की बात. With a regular practice of beginner's mind, it will become easier to see your child as she is now, rather than your image you have seen her in the past. With this attitude, you don't limit your child's possibilities on your own with the labels. You can see them more fully, more openly. आपका बच्चा आप नहीं हो. आपका बच्चा आपकी deficiencies पूरी करने के लिए नहीं है. आपका बच्चा आपका क्लेम दुनिया में बढ़ाने के लिए नहीं है. हमारे बच्चे हमारा सदका जारिया हो सकते हैं पर एग्जैक्टली वो ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं होते जो हमने अपने लिए चाही या जो हम नहीं कर पा रहे, राइट. तो यहाँ पे एक उन्होंने स्टोरी की है, कैरन स्टोरी, कि 4-year-old Asher has having a blast playing when it was time to go. He did not want to leave, but he had a doctor's appointment. His mom, Karen, remembered the skill of acknowledgement and asks Asher to begin and says to Asher, Asher, जाने का टाइम हो गया, चलो बेटा तैयारी करें.
As 4 साल का बच्चा, वो 4 साल का बच्चा जब खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ या प्ले एरिया में, तो वो क्या करेगा? चीखना चलाना शुरू कर देगा, नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं जाना. एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो उसकी पावर क्या है? उसकी पावर ये है कि आप अपने बच्चे से कहते हैं मुझे पता है कि तुम खेलना चाह रही हो, मुझे पता है कि तुम खेलना चाह रहे हो, बट यू नो व्हाट, दिस इज इम्पोर्टेंट, वी रियली नीड टू डू दिस. चलें, अगर आप इस चीज़ की ओपन कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आई गारंटी यू बच्चे खुश तो नहीं होता कि ओह हाँ चलो ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, नहीं, लेकिन बच्चा अंडरस्टैंड करता है, रियलाइज करता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स गो, राइट. Then let's come to the next part. Acknowledgement can be magic. Basically you have to acknowledge. For example, किसी बच्चे से कोई चीज़ spill हो गई है, एक्नॉलेज करें कि गलती से आपसे कोई चीज़ स्पिल हो गई है, बजाय से कहने कि तुमने ये क्या कर दिया, अब मुझे सारा साफ़ करना पड़ेगा, मैं सफाई करके अभी फारिग हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इतनी लंबी तमहीद मानने से बेहतर है एक्नॉलेज करें कि यार बच्चा है, हाथ से चीज़ फिसल गई है, फिसल के गिर गई है, गिर के टूट गई है, गिर के फैल गई है, कोई बात नहीं है, ये साफ़ हो सकती है, ये साफ़ हो सकती है. और आप जब वो एक्नॉलेजमेंट्स करते हो तो आप बेसिकली अपने बच्चों को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हो, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. To note the inner feelings, look inside. Say what you see. Are you feeling grumpy, tired? Am I feeling, for example, you had a very stressful day. And you had a stressful day because maybe at work or maybe at home you had to deal with some argumentation. किसी बड़े के साथ आपकी argument हो गई, ठीक है? अब आपका argument हो गया या आपकी क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, और उसके अलावा हम क्या कहेंगे. अब वो फीलिंग आपको नैग कर रही है, आपके दिमाग में वो फीलिंग है, वो सारे डायलॉग, वो सारे एक्सप्रेशन, इम्प्रेशन, इमोशन, वो सारा कुछ आपके अंदर अभी चल रहा है, और आपके बच्चे से कोई चीज़ स्लिप होके गिर गई है या आपके बच्चे से कोई चीज़ ख़राब हो गई है. इनिशियल रिएक्शन क्या होता है? वो जो सारा एंगर, पेंटेड अप एंगर और पेंटेड अप इमोशन हमारा किसी और वजह से स्टेमिन हुआ है, वो हमारा बच्चे पे निकल जाता है. अगर आप एक्नॉलेज करें अपनी फीलिंग को और अपने इमोशन को, और आप रिएक्ट करने से पहले बोलें कि यार आई एम फीलिंग समथिंग बट दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ माई मेल्ट डाउन, यू विल बी एबल टू स्टॉप योर सेल्फ. आप अपने आप को रोक सकेंगे, आप अपने आप को माइंडफुली उस बच्चे को हर्ट करने से वर्बली एंड फिजिकली रोक सकेंगे, क्योंकि उसमें वो जो अब हो रहा है, जो एक्शन अब हो रहा है, उसका प्रीवियस एक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन चूंकि आपने माइंडफुली उस एक्शन को और इस एक्शन को सेपरेट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया अपने दिमाग में कि मेरा मसला कुछ और है और ये हरकत कुछ और है, तो यू आर एबल टू become a better communicator with your child, inshallah. To note what is going on with your child, say what you see. Verbally acknowledge your child's feeling. Say you're upset and it's time to stop. You wish you didn't have to go to bed. ये एक बड़ी वेस्टर्न सी एग्जांपल है कि जब बच्चे बिस्तर पे जाने से पहले रोते परेशान होते कि हमने अभी नहीं सोना, हमने अभी नहीं सोना, तो आप बच्चे को बोलेंगे मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, मुझे पता है ये. तो बेसिकली बार बार वो इसी चीज़ को रिएट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, दिस वन इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. अनहुकिंग फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, राइट? Unhooking from negative thoughts, what does that basically mean? It means thoughts like, I'm not a good parent, I'm not good enough, मेरे अंदर ये खामियां हैं, मेरे बच्चों के अंदर भी ये खामियां आ जाएंगी, ये तो या ये मेरे बच्चे की फितरत ही ऐसी है. हम मजाक में बड़ी ख़राब बात करते हैं अपने बच्चों के साथ. हमें हमारा जो रिश्तेदार नहीं ना पसंद होता, हम अपने बच्चे को कहते हैं तुम बिल्कुल उस पर चले गए हो, कहते हैं ना. अब हमारे बच्चे स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि हमारी माँ की तो इस बंदे से बन के नहीं आती या इस बंदी से बन के नहीं आती, मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं उसकी तरह हूँ. तो आपने बच्चे को क्या मैसेज दिया? आपने बच्चे को मैसेज ये दिया कि तुम मेरे लिए नागवार हो. कैसा लगता होगा उस बच्चे को जब उसको ये महसूस, उसके अंदर ये फीलिंग बैठ जाए कि मैं अपनी माँ के लिए नागवार हूँ, या मेरी एग्जिस्टेंस या मेरी प्रेजेंस मेरी माँ को उस चीज़ की याद दिलाती है जो उसके लिए नागवार है. It's not a good feeling. It's not a good feeling. And we do this as a cultural practice which is non-empathetic and non-compassionate, and we should really not be doing it. Khair, so unhooking, you can write this down, unhooking from negative thoughts. I'm not good enough, I'm a terrible parent, and negative thoughts also prevent you from making good choices. Waswas. क्यों है कि शैतान के वसवास से
पनाह मांगे, अल्लाहुम्मा inni अऊज़ु बिका मिन हमाज़ात अश-शयातीन व अऊज़ु बिका अन यहज़ुरून. Basically you're saying कि या अल्लाह मुझे शयातीन की पनाह से महफूज फरमा, क्योंकि शयातीन जिन जो हैं वो हमारे कानों में फूंकते रहते हैं नेगेटिव 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 नेगेटिव, राइट? उस चीज़ से अपने आप को ब्रेक करने की हमें ज़रूरत है. Notice when you're getting tight, constricted, irritated or sad, then notice if there is a thought behind the sensation. Like for example, I am terrible at this, या फिर मेरे बच्चे के साथ कोई मसला है, या मेरा बच्चा ही horrible है. तो mentally put the phrase, listen to this, mentally put the phrase, I'm having a thought of negativity, मैं अपने बारे में बुरा सोच रही हूँ जो कि unhelpful है. I am having a thought. सिर्फ ये सेंटेंस कि मुझे ये वसवास आ रहा है कि मैं enough नहीं हूँ अपने बच्चों के लिए. Your mind will register that this is not something that you believe. This is something that is coming from the outside. It is extremely important to practice that because हम जो कुछ सोचते हैं हम उस पर अमल भी कर लेते हैं, और अक्सर औकात हम वसवास में और पॉजिटिव थॉट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और हम अपने आप को समझा लेते हैं वो नेगेटिव थॉट्स अपने बारे में, which is not at all something that we should be doing, right? So unhooking from the negative thoughts doesn't mean that they will go away forever. ऐसा नहीं हो सकता कि negative thoughts चली जाएं, लेकिन आपको उन negative thoughts के साथ आपने डील कैसे करना है वो आपको समझ आ जाएगा. एक लास्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ, seeing your issues clearly पे, ठीक है? उसके बाद फिर हम ये इंशाल्लाह अपना लाइफ ख़त्म करते हैं. And after I get a feedback from the admin of the group, inshallah, we will do the next session. ठीक है? Sam's story. So seeing your issues clearly, understanding what triggered you will help you to respond more thoughtfully. Without awareness, you react to your old conditioning. अपनी नेगेटिव थॉट्स को रोकना, अपनी ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना, अपने आप को समझाना कि ये मेरी खाम ख्याली है, ये मेरा वहम है, ये मेरा गुमान है और ये हकीकत है. ये प्रैक्टिस से आएगा, ये एकदम से ओवर द नाइट आ भी नहीं सकता. सो सैम्स स्टोरी, सैम हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, शी इज़ टेकिंग सम टाइम ऑफ फ्रॉम हर वर्क एज द यूनिवर्सिटी एडमिशंस ऑफ अ काउंसलर स्टे. तो वो अपनी 2 साल की बच्ची के साथ घर पर हैं. एक दिन क्या होता है कि वो अपना घर सारा साफ करती हैं और उनकी जो बेटी थोड़ी सी बड़ी है वो ऑरेंज जूस जो है वो स्पिल कर देती है किचन फ्लोर पे. सैम को इंतहा का गुस्सा आता है, ठीक, और वो सोचती है कि आई कैन बिलीव, मतलब मैं छुट्टी लेके इस बच्चे के साथ घर पे होने के लिए कि इसको किसी और की ज़रूरत ना पड़े, इसको मैं कहीं भेजूँ ना, मैं इसके साथ तो मैं घर साफ कर रही हूँ, मैं इसका ख्याल रख रही हूँ, और इसको देखो मैंने अभी साफ किया है किचन और उसने अभी उसके अंदर गंद मचा दिया. उसको गुस्सा आया, उसने बच्ची पे चीखा चलाया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि मैंने किया क्या है. उसने कहा, working through she discovered that the wounds from the past were driving many of her feelings. Her trigger, perfectionism. उसे एहसास हुआ कि वो उसके पास्ट में से उसका ट्रिगर है और वो परफेक्शनिज्म का ट्रिगर है. और ट्रिगर क्या था कि उसको ये याद आया कि जब मैं छोटी थी, जब सैम खुद छोटी थी, तो जब वो किसी छोटी सी चीज़ से घबरा जाती थी तो उसको उसके घर वाले कहते थे सेंसिटिव होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये क्या छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देती हो, टफन अप, थोड़ा सा अपने अंदर हौसला पैदा करो. Her feelings drove her to react with more aggression and irritation than the situation warranted. टफन अप का मतलब उस छोटे से बच्चे ने क्या समझा, उस बच्चे ने समझा कि मैं चीखना, चिल्लाना और एग्रेसिवली बिहेव करना टफन अप होता है. हालांकि टफन अप ये नहीं होता है, पर चूंकि उसको ये बात समझा दी गई थी या उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी तो उसको कम्युनिकेट करना नहीं आया. और फिर जब वो माँ बनी तो उसको अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना नहीं आया, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके साथ ही कम्युनिकेट नहीं किया था, क्योंकि उसने ये प्रैक्टिस नहीं की थी. सुब्हानअल्लाह. So you have to look back at your childhood as well to remove some of the triggers. Acha, before I leave, inshallah, I wanted to do some. You have to, with your children, what you have to do is practice mindful listening. Put the phone and the other distractions away so that you're not tempted to check them. After putting away your intrusions, focus on the body language towards your child. Turn your body, और ये तो सारे लोगों में बताते हैं कि turn your body into their direction, look at them, have eye contact. If your child is a touchy-feely kind of a child, उसका हाथ पकड़ के उससे बात करें, मुस्कुरा के बात करें, हाजिर हो उस मोमेंट में ताकि आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो सकें. Use your mindfulness skill to notice when your mind is wandering. अच्छा, ये मुझे बड़ी मज़े की एग्जांपल लगी.
उसकी वजह ये है कि मुझे ये मज़े की एग्जाम्पल क्यों लगेंगे कि आपको यहाँ पता होगा कि जब 4, 5, 6, 7 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक होता है. एंड मामा यू नो देन व्हाट हैपेंड, एंड आपको पता है फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ, और आपके पास 3600 आपकी जहन में बातें होती हैं जो आप सोच रही होती हैं, और आप वाकई में उस बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं. लेकिन उस बच्चे पर ध्यान देने की ज़रूरत है. उसकी बात आपको लगता है कि घंटे तक की लंबी है, लेकिन कोई बात घंटे तक की लंबी कभी होती नहीं है, अनलेस अंटिल आपको मेरे साथ लाइव हो तो वो बात सिर्फ 10 मिनट की होती है या 15 मिनट की. बहुत खींच के बच्चे इतनी लंबी बात कर ही नहीं सकते. आपके जहन में ये बैठ गया हुआ है कि अगर मैं इसकी बात सुन रही हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हूँ, क्योंकि उसकी बात रेपिटेशन लूप पर है. पर माइंडफुलनेस यही है. कॉन्फिडेंट बच्चे हम रेज ही ऐसे करते हैं जब हम उनकी बात को अहमियत देते हैं. अब आप मुझे कहेंगे कि इरम फिर इसका तो मतलब है हम बच्चों की सारी बातें सुननी शुरू कर दें तो वो तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे. देखिए, हर चीज़ का एक लेवल और हर चीज़ का एक स्टेज होता है. बच्चों को पहले हम कॉन्फिडेंस देते हैं, जैसे कि हमारे दीन में है कि 7 साल के बच्चे की तरबियत करो, और हम तरबियत का मतलब इंतहाई नेगेटिव ले लेते हैं. लेकिन खैर, दैट इज़ अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे, फॉर अनदर डिस्कशन. लेकिन the first thing is give them the confidence that you are right there to listen to them. उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को सिखाते हैं. बच्चे बीच जब बड़े बात में बात कर रहे हो तो बात को टोकते नहीं. उसके बाद थोड़ा सा वो और समझदार होता है तो उसे बताते हैं कि बात छोटी, मुख्तसर और टू द पॉइंट करने की ज़रूरत होती है. लेकिन then again बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आती हैं. हर बंदे का एक different temperament होता है. Not to lose the point of focus. I hope the next time we're going to do disarming your triggers, and then we are going to come on to the points of raising confident children. Inshallah, the next session is going to be about that. Jazakallah khair for everybody who participated. Jazakallah khair for everybody who listened. The book, if you can get the book, please do. Raising Good Humans, right? And it's a mindful guide to breaking the cycle of reactive parenting, raising kind, confident kids, on my YouTube channel, Parenting Uncomplicated by Iram bin Safia, and on my blog, www.parentinguncomplicated.com. I will be putting more parenting tips and skills and videos regarding this book and many other books that I'm studying, so that you can actually have a resource for yourself, inshallah. Also, I have opened my one-on-one coaching for anybody who is interested. Inshallah, please DM me, send me message, and I will respond to it. We can have a payment plan, inshallah, or we can have a one-time payment or a payment plan for that one-on-one coaching. I'm doing a effective 3-week, every day 1 hour one-on-one coaching to change into positive habits so that you can become productive, healthy, mindful parents. That is what Parenting Uncomplicated is about, isn't it? Inshallah. Thank you so much. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We will continue with our book. We will continue with our discussion. And send me your questions, send me your queries. Look up my page on Facebook, Iram bint Safia. That's my page. Look it up. And subscribe. YouTube and the blog. And if you are on Instagram, I would love you to follow me on Instagram because I do a lot of different things on Instagram as well. Iram bin Safia _spark_inspire. Hogi, coffee promotion hogi. Take care. Assalamu alaikum.